Hi everyone! In today's episode of Green Thumb, I'd like to talk about this beautiful poinsettia plant. It is also called the Christmas plant, owing to the fact that these bloom to their best during the Christmas time or in the winter season. It comes in beautiful hues of red, pink, white and this variegated variety also. It belongs to Mexico and owing to a tropical nature, they love to dwell in a warm, humid environment with somewhat moist soil. The beautiful colored leaves that you are seeing on top of this plant are not actually the flowers of this plant, but these are the modified leaves called bracts, and the actual flowers are these small clusters at the center, which is surrounded by the colorful bracts in order to attract the insect pollinators. So when given right light and growing conditions, they give out these colorful bracts, which is the USP of this plant. Now, whatever information I have about this plant, I have divided it into 3 sections. So stay till the end of the video in order to get the whole information about this plant. The 3 sections in which I have divided it is, the first one is how to buy this plant. That is the factors which you should keep in mind while buying this plant. The second one is the care and maintenance tips during its blooming period, that is in the winters. And the third point, which I will be discussing at the end of the video, would be how to take care of this plant so that after the blooming period ends, you can keep it in such a healthy position that it gets its same bloom and same type of growth in the next season as well. So coming to the first point is how to buy. So while buying this plant, you should keep in mind to see for the leaves that these should be very firm and full and not very leggy type plant. जैसे आप ये देख रहे हैं, इनके leaves जो हैं, bracts as well as the green ones are all very fresh and very hard to touch. ये बहुत limpy type से नहीं हैं इस तरह के. As well as they should not be very discolored type of bracts जिनके color fade हो रहे हों. And you should also see that the leaves cluster, the flower cluster in the center are fresh as well. Being belonging to the Euphorbiaceae family, this plant give out some sap-like liquid, white type liquid, which is a bit toxic. So it can cause skin irritation, and also it is not very good for the pets and children. So keep them away from their reach. Now coming to the second section, that is the care tip of this plant during the blooming period. Is the first thing which I'd like to mention is the sunlight. These plants prefer bright but indirect sunlight. Generally southern or southwest facing, like this one. I've kept my plant in the southwest corner of the balcony, where it is getting sufficient light, bright light, but at the same time it is not exposed to very direct sunlight, which might scorch their leaves. ये प्लांट्स को जब बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है तो इनके लीव्स लिम्प होकर, क्रम्पल होकर तुरंत फॉल ऑफ कर जाते हैं. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट गिव इट अ ब्राइट लिट कॉर्नर, बट इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू वेरी डायरेक्ट सनलाइट. Now the second thing, it should be kept very far away from any type of draft. किसी भी तरह की बहुत तेज़ हवा, ठंडी या गर्म इमीडिएटली इनके लीफ फॉल को रिजल्ट करते हैं. सो कीप देम अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ, ऐसे किसी एंट्रेंस के पास घर के मत रखिए इसे, या फिर किसी तेज़ हवा से एक्सपोज्ड बालकनी में भी, जहाँ उनके लीफ फॉल के पूरे चांसेस होते हैं. इफ़ यू आर कीपिंग देम इनडोर्स लाइक इन लिविंग रूम, तो उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहाँ उन्हें फ़ैन की हवा डायरेक्टली ना मिल रही हो. सो कीप इट इन अ कॉर्नर वेर इट इज़ अवे फ्रॉम द एयर ऑफ द fan. Now talking about the water conditions, they prefer to be in highly moist soil, but it should not be too wet at the same time. So always water them whenever the topsoil feels a little dry, and especially during the blooming time. Like अभी की जो टाइम है, जिस समय ये फुल ब्लूम पे हैं, इस टाइम पे इन्हें
एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर आपके सराउंडिंग के वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके सॉइल को टच करके देखें। अगर ड्राई लग रही है टॉप सॉइल तब उसमें पानी डालें। सोक देम थरली विथ वाटर टिल द वाटर सीप्स द ड्रेनेज होल्स। जब उनके नीचे के ड्रेनेज होल से पानी जब तक निकलने ना लगे तब तक उनमें पानी डालते रहें, और उसके बाद जब नीचे ड्रेनेज होल में पानी आ जाती है तो उसे इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दें। बिकॉज when these are the roots of these plants are exposed to water, they come in under stress and the plant immediately start falling off their leaves. So always keep in mind, as soon as you see the water coming out of the drainage hole, you remove the water that has seeped out. इस तरह से ये देखिए यहाँ पानी जो इसमें निकल कर आ गई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसमें पानी डाला था तो वो अभी 5 मिनट के बाद इस तरह से पानी निकल कर आई है, जिसे तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए so that it may not result into the root rot. Now talking about their fertilization, do not fertilize this plant during the bloom period. ये प्लांट जिस समय ब्लूमिंग पीरियड में है लाइक इन विंटर्स, इस टाइम पे बिल्कुल इनके किसी काम का नहीं होगा फर्टिलाइज़र। सो इन्हें बिल्कुल किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र एंड स्पेशली केमिकल फर्टिलाइज़र इसे बिल्कुल भी ना दें। नाउ टॉकिंग अबाउट द ह्यूमिडिटी, दीज प्लांट्स लव ह्यूमिडिटी, सो कीप इट इन अ प्लेस वेयर दे गेट सफिशिएंट मॉइस्चर। Try not to water the leaves because it leaves the white marks on their beautifully colored leaves. So उसे हमेशा पानी जो है वो डायरेक्ट उनके सॉइल में डालें और इसके ऊपर जनरली इस पर मिस्टिंग नहीं करनी चाहिए। If you in order to keep the humidity level high, keep them in a tray filled with pebble and water, या फिर इन्हें अदर हाउस प्लांट्स के क्लस्टर के बीच में ऐसे रखें ताकि इट सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ माइक्रो क्लाइमेट इटसेल्फ। जो उन बड़े प्लांट्स के जो ट्रांसपिरेशन से एक मॉइस्चर रिलीज़ होगी, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर दिस प्लांट। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस प्लांट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दो अ बिट टीडियस, लेकिन अगर हम लोग उसका ध्यान रखें आफ्टर उनके ब्लूमिंग पीरियड के कैसे उन्हें रखना है, मेंटेन करना है, ताकि वो ईयर एंड पे जब उनका नेक्स्ट सीज़न आए ब्लूमिंग टाइम, उस टाइम पे वो उन्हें अच्छे से वो ग्रो होकर रेडी हो सकें इन ऑर्डर टू ब्लूम। So the preparing the plant for the next season, starting from February end और March, जब इनके जो leaves हैं वो almost fade out होकर गिर चुके होते हैं, तो ये वो टाइम है जब आप उसे उन्हें प्रून कर दें, उनके स्टेम्स को लगभग 6 से 7 इंच हाइट उनकी रहने दें केवल, और बाकी के सारे ब्रांचेस को उनको प्रून कर दें and expose them to a bit shady place because वहाँ इस टाइम पे धीरे धीरे धूप काफ़ी तेज़ होने लगती है, तो keep them in shady place, a bit shady place, and it should also be cool place, लगभग 19 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड उस समय टेम्परेचर होनी चाहिए उसके आसपास की। Continue to water a little but gradually try to reduce the water amount. ब्लूम टाइम पे जितना उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, जब उनकी डॉर्मेंसी पीरियड आती है आफ्टर मार्च अप्रैल, धीरे धीरे उनके पानी की अमाउंट को कम करते जाना चाहिए। एंड दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू फर्टिलाइज़ दिस प्लांट, क्योंकि अभी तक इन्हें हम लोग फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे थे, तो दिस इज़ नाउ द करेक्ट टाइम टू फर्टिलाइज़ देम। सो अब एवरी ऑल्टरनेट वीक या फिर फोर्टनाइटली उन्हें किसी भी हाउस प्लांट फर्टिलाइज़र से लिक्विड फॉर्म में उनमें डालें, और उसके बाद उन्हें जब तक उनके न्यू ब्रांचेस ऑफ लीव्स नहीं आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद जब आप देखेंगे कि जब जहाँ से आपने कट किया था, इवेंचुअली न्यू ब्रांचेस विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द साइड ऑफ दोज पार्ट्स। This phase of poinsettia is actually the preparatory phase till October end for new blooms. So this is the time to prepare the plant or to make the plant healthy. So this is also the time when you can repot the plant, क्योंकि जब प्लांट नई आई होती है उस समय हमें उन्हें रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनके रूट्स को टच नहीं करना चाहिए ब्लूम पीरियड पे उनके। बट मार्च अप्रैल के एंड में जब उनके सारे लीव्स जो हैं प्लांट को हम लोग जब कट कर देते हैं छोटे इसमें,
तो उसके बाद उसे हम लोग ये कर सकते हैं इनके रिपोर्टिंग का टाइम, अगर लगे कि हाँ प्लांट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है कंपेयर टू द साइज़ ऑफ द पॉट। जून एंड के महीने में इन्हें टाइम टू टाइम पिंच करते रहना चाहिए। लाइक ऊपर के जो थोड़े छोटे छोटे टिप्स हैं उन्हें हमेशा पिंच ऑफ करके कट करके हटाते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी ब्रांचिंग और ज़्यादा इन्हांस हो। एंड यू कैन सी द मोर यू पिंच फ्रॉम द टॉप, द more branches you will get, and thus resulting in more amount of beautiful bracts that would result at the end of the year. Now coming to the most important aspect of their care tip, poinsettias flower करते हैं और you can say it is forced to flower when they are completely dark condition में उन्हें 12 से 14 घंटे एक्सपोजर मिलनी चाहिए of darkness, followed by 8 to 12 hours of bright but indirect sunlight. So by the end of September और starting of October, जब उनके ब्लूम होने के करीब 1-2 महीने पहले, उस टाइम से हम लोग उन्हें ऑलमोस्ट 8 वीक्स की कंप्लीट डार्कनेस ऑफ 12 to 14 आवर्स की देनी चाहिए। लाइक शाम के 6 बजे से शुरू करके नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे तक उन्हें एक ऐसे जगह पर रखें, एक ऐसे कॉर्नर में रखें जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं आती हो, कंप्लीट डार्कनेस हो। और द ईजियर मेथड इज़ दैट यू कैन कवर इट विथ अ कार्डबोर्ड बॉक्स और एनीथिंग, जिससे कि वो कंप्लीट डार्कनेस में रहे 14 आवर्स तक। एंड आफ्टर दैट इन द मॉर्निंग यू कैन ब्रिंग इट आउट इन ब्राइट लाइट। एंड 10 इस तरह के 8 वीक के प्रोसेस के बाद यू विल सी स्मॉल कलरफुल ब्रैक्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द एट द टिप ऑफ द प्लांट। तो ये एक थोड़ी टीडियस जॉब है, बट एट द एंड यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट। सो ट्राई टू डू दिस। बहुत आसान है, ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑलवेज़ इस बात को ध्यान में रखें कि इट गोज़ थ्रू अ फोटो पीरियोडिज़म सॉर्ट ऑफ पीरियड। इन्हें 12 to 14 आवर्स की डार्कनेस के बाद 8 to 10 आवर्स की लाइट जब इस तरह से मिलेगी करीब 2 महीने तक, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह के ब्राइट कलर के ब्रैक्ट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर। By the beginning of November, you will see new colored bracts coming out. This is the time when you can bring out the plant to its normal position in the sunny spot outside for the whole day. और ये वो टाइम है जब आप उसमें alternate day पानी डालना शुरू कर दें, फर्टिलाइजेशन देना बिल्कुल बंद कर दें और बिल्कुल लिमिट कर दें। सो दीज आर सम ऑफ द केयर टिप्स। एक बार फिर से हम लोग उन्हें मैं बता देती हूँ कि जब इनकी ब्लूमिंग पीरियड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो लगभग मार्च एंड पे, तो उस टाइम पे प्लांट को एक कूल शेडी प्लेस में ले आएँ। वाटर रेगुलरली बट गो ऑन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टिल द स्प्रिंग। उसके बाद उन्हें स्टेम उनके 5-6 इंचेस तक कट करके और रेडी कर दें उन्हें नेक्स्ट सीजन के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट poinsettia. होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thanks for watching.